जो उसका म्यूजिक आता है ना, I love the music. Ta-na-na-na-na, you know, just the background music also. And I think Iska or Juni ka right now is the top. When he starts dancing, and वो परेशान है because उसको पता है कि एक तो वो पंगा वहाँ ले रहा है देश के साथ, रेमती के साथ, और क्या कहते हैं ये अब भाग रहा नहीं है. So far, I just love watching it. I mean, in the sense, I think out of all my Korean dramas, these two dramas are the ones that, you know, कि अगर मैं होता है ना कि मैं कौन से? हाँ जट पत्तों का बंधन देश. जब मैं कोरियन ड्रामे देख रही होती हूँ ना, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा ब्रेक लेती हूँ. एंड बिकॉज पहले होता था कि मैं अपने ड्रामे देख रही होती थी, मैंने कहा उनके लिए मैं ब्रेक ले लूँ, बट यहाँ आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर देम. एंड व्हाट आई लव अबाउट दिस कि जैसे ही स्टार्ट होता है ना, जो उसका म्यूजिक आता है ना, I love the music. ता-ना-ना-ना, you know, और वो कहीं आता है, मूड सेट हो जाता है. ओवरडू नहीं भी हुआ हुआ, No, बड़ा no, no, सही this is आता the है. title पे. हाँ, This is the टाइटल पे, title, yes, ना? yes, yes. So it just sets you up for the drama, because it takes you in. Because they can, whatever it is, I think Haisam has sort of taken us out of the real world into a sort of a fictitious kind of a stylized world of the Gundas, and you know, because like I said, believability factor अगर आप दो तीन चीज़ों से निकाल, so that just sets that mood. And then this time I noticed just the background music also, and I think Iska or Juni ka right now is the top. Whoever is doing background, excellent. If directors are involved, excellent for you. I am loving this two things that are happening together, which is एक तो इसको उनको बुला रहे हैं शो पे, और यहाँ उनके लिए एक रेट तैयार कर रहे हैं. सो हाउ दैट इज़, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइड ऑफ इट. पुलिस वाले ने आके कह भी दिया कि आप भागें, हाइड, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हैपन. मुन्ना सेज आई एम नॉट गोइंग टू हाइड. हिज दिलबर का कैरेक्टर बहुत पोटेंट हो गया है, बिकॉज how he is going to save him, because that scene on the chat, which I want to talk about when it comes in the direction of it, but if you notice, the camera just starts with Humayun, He was and dancing. it comes on to Dilbar, and then it just stays on Dilbar, and he does another turn, and then he starts dancing. And वो परेशान है because उसको पता है कि एक तो वो पंगा वहाँ ले रहा है देश के साथ, रेमती के साथ, और क्या कहते हैं ये अब भाग रहा नहीं है, क्या करेगा. एंड इन द कॉन्वर्सेशन दैट रुबीना वाज टॉकिंग अबाउट, सो आई दैट फॉर मी दैट सीन वाज जस्ट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. सो क्या इमोजी आपके पास फोर्थ एपिसोड के लिए जेंटलमैन की? I think when you are in such a, if you are running a channel, if you are a DC, you won't just use the word Gundas, because that's a very ambiguous thing. कौन, कैसे, आप गैंग की बात कर सकते हैं, या you know, something I feel needed to be there, जिससे आपका जो एक अपना स्टैचर है वो एलिवेट हो जाएगा. लगता था कि आप अपने घर पे बैठ के ना, अरे यार 3 गुंडों से बात कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. I just felt that sort of, that the dialogues of that scene brought that entire scene down. He tells her, इनमें से बहुत आपका शो भी देखते होंगे, दिस इज द हेड ऑफ द चैनल और वट एवर द CEO जो हेड है, उनमें से आपके मीनिंग आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की. इफ़ यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन, डोंट से इट. दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ द न्यूज़. यू कांट जस्ट रैंडमली जस्ट से कि ओ आपके तो बड़े शोज देखते होंगे. अरे यार ये कोई बात, इट्स सच अ इमेच्योर लाइन. I mean, in the sense, in immature line, in the realm of what was being discussed over there. And then again, she's saying, आप इसलिए कर रहे हैं कि TRPs आएंगी. Again, आपको TRP से क्या मतलब? आप पहले तो बहुत खुश थी with the TRPs, and now suddenly you're not happy. You know, so there was a little bit of a thing, but then we move away from this. And then all the other scenes start, you know, and then you say, okay, fine, chalo, theek hai, you know, we will cut some marks there, but I think out of the two scenes, again, the Dhakte Na Din, that was my favorite, and then this dining. The dining table scene was so mature. It was, you know, लगता था कि दो mature लोग जिनका दुनिया के बारे में knowledge है, वो बात कर रहे हैं, और performances, जिनमें कोई intellectual depth है, मतलब जब दो लोग ऐसे performance, because आपको lines तो मिल गई ना. अच्छा, and then the casualness, there was a dosti, there was a what is happening, there was a tension, you know, there was just everything in that scene. So that scene went to all three, the director,
the writer of course, the director and the actors. I thought that scene was, उसमें से एक flaw था, वो जब direction पे आएंगे I'll talk about it. But these were my two favorite scenes. And then of course, like I told you before, ये जो दो चीज़ें साथ साथ हो रही हैं, इंटरव्यू पे भी आएंगे, इन पे छापा भी होगा. And क्या कहते हैं, जब ये कॉल करती हैं इन दोनों को, I thought their reactions were just too good. लग रहा था कि क्या उसका तो फोन गिर जाता है ना रेमती का. It was just too good. नहीं वो जरनाब ने कॉल्स बहुत प्रोफेशनल डांस की. Actually when you are lining up someone, जी इकबाल साहब, I think this was her episode for sure. I thought it was what's his name, Dilbar. I think Dilbar has, you know, because Dilbar का बहुत interesting मुझे लग, I'm hoping कि उसका क्या part आएगा, but he is not happy with what's happening. He is the only one who's not happy. वो तो कह रहा है कि I mean, and of course, humble is a new English word that Humayun used. Humble. नहीं ये पढ़ा लिखा है. नहीं. बता, हाँ, ये पता चल जाएगा. ये पता चल जाएगा बाद में. चलो फिर ठीक है. Okay, so yeah, he knows. सही है. Good to know that. Good to know that. When he also जरनाब को जब ये बता रहा होता है फारिस कि मुझ पे ज़्यादा गुस्सा मत किया करो, तो उसने जो लॉजिक दी थी, was that enough for a woman to say कि हाँ अच्छा I won't be get annoyed with you. नहीं थी ना. हाँ, I also feel because the thing is कि अगर तुम्हारा गुस्सा नहीं लॉजिक तो उसकी बहुत अच्छी थी. तो फिर then why does he get annoyed with her? अगर वो अपनी लॉजिक से आ रहा है तो ये अपनी लॉजिक से करती है कि ये भी तो गुस्सा करता है ना इस पे. वन साइडेड वो कन्वर्सेशन वन साइडेड थी. वो बहुत स्वीट थी. उसने कहा कि वो तो जो से कल रात किया था. I liked it. I'm not saying I didn't like it, but I didn't think it was enough. अच्छा राइटिंग का नंबर 8 तो बनता है. राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए 10,100 हुए हैं और जेंटलमैन से खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 3,317. 31% बनते हैं 3.1 मिलियन. Not bad. अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की. हाइसम हुसैन. Loving it. छोटी छोटी जगह हैं जो कि जैसे कि जरनाब की सारी फोन कॉन्वर्सेशन, द जरनाब दैट वी हैवंट, द यमुना दैट वी हैवंट एवर सीन बिफोर, मतलब ये मूवमेंट के हिसाब से फ्रेमिंग होती है शॉट्स, वो मतलब कहाँ से फ्लो होता है. आप उसके पूरे घर में आप घूम रहे होते हो और कहीं पे भी लाइट का मसला नहीं होता, लाइट कैसे की गई है. और हर सीन में मूवमेंट है. ये मैंने डायरेक्शन में देखा. हमने बहुत दिनों बाद देखा. बहुत दिनों बाद मतलब इतना. और कहीं पर भी आपको लग रहा है कि ओह माय गॉड, ये पता चलता है कि पूरा कोरियोग्राफ हुआ है. ये इधर से इधर तक गए होंगे. पहले 10 दफ़ा रिहर्सल हुई होगी कि अब आपने यहाँ चल के अहमद अली बट और हमारे ने यहाँ रुकना है, क्योंकि लाइट जब पड़ रही होती है ना. और वो मैं वही देख रहा था कि वो सो इंटेलिजेंट है. कहाँ से सीन शुरू होता है और कहीं पे भी लाइट का कोई मसला नहीं होता. You know, absolutely straight. And even when she's eating in the close-up, she's using her, elbow and she's taking it off the table. Usme she's like this, so that I felt was my biggest issue with the entire play and the first scene. Jisme I think director could have also stepped in and made it look a little more professional than घर में बैठ के गुंडों की बातें करना. But for me, it's always a pleasure to watch this man work. Just how he imagines the scenes, how he brings them to life, how he works with the actors, and how the actors. I mean, that whole scene. अगर वहाँ बुरे actors होते या बुरा director होता, can you imagine? वो इतना natural था ना उनकी conversation. It was so natural. It was like they was actually having a proper conversation. It wasn't like कि आपको पता है कि ये dialogues लिखे हुए हैं. और वो हंस भी जिस बातें हंसते थे और वो जिस तरह हंसते टालते थे बात को कि तुम इतना सीरियस क्यों ले रही हो. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. इवन उसको भी little things. It was a very very good scene, except for the slouching. I wish she hadn't done that. Next time, please remember, kids. But for me also, 8 definitely. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 10,200 हुए हैं और जेंटलमैन से हाइसम हुसैन के हिस्से में आए 3,550. 35% बनते हैं 3.5. उतने ही जितने राइटिंग को मिले हैं. उससे ऊपर थोड़े से ऊपर है. राइटिंग से थोड़े से ऊपर डायरेक्शन को मिले हैं. बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, यमुना जैदी. आई एम फॉलिंग इन लव विद हर ईच एंड एवरी टाइम, क्योंकि जो उसका कैरेक्टर लिखा है वो
बिल्कुल पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी परफेक्शन के साथ मुझ तक पहुंच रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट जनाब का की हल्की सी मूवमेंट, जनाब का खिड़की में से कुछ देख के निकलना, अपना एप्रन उतारना, दुपट्टा पकड़ना। आई एम लविंग द मूवमेंट, आई एम लविंग द वे दैट शी इज़ कैरिंग द मूवमेंट्स। वो हमने एक चीज़ थी, और ये एक्चुअल है, नादिया को भी आइडिया होगा, बल्कि मैंने दोनों एंकर्स हैं, और ये मेरे साथ भी था, क्योंकि प्रोड्यूसर्स भी लाइन अप कर रहे होते हैं, जब एंकर्स होते हैं वो भी लाइन अप, हम कहीं बैठ के लाइन अप नहीं करते हैं, हमेशा वॉक कर रहे होते हैं। यू नो, व्हेनेवर वी लाइनिंग अप समवन, वी आर इन अ काइंड ऑफ एंजाइटी, सो वी ऑलवेज वॉक, एंड शी वाज आल्सो डूइंग द सेम। दैट वाज सो इंटेलिजेंट, आई वाज लाइक ऐसे ही होता है, एंकर ऐसे ही लाइन अप करता है, वो बिल्कुल बैठ के सुकून से कॉल नहीं मिलाता किसी को, जी मैं आपको लाइन, नो, वो हमेशा वॉक कर रहा होगा, और वो जिस तरह से वॉक कर रही थी, और जिस तरह से, और दैट वाज सो बिलीवेबल। हाँ, it was definitely an 8. नादिया, यमुना का मुझे जो इंटरेक्शन फारिस के साथ हुआ एपिसोड 4 ऑफ जेंटलमैन, वो बहुत कमाल था, क्योंकि एक इतनी इंटेलिजेंट स्मार्ट लड़की बेवकूफ़ बन रही है,